دریائے ستلج چناب اور راوی میں سیلابی صورتحال. نئے ریلے کے بعد دریائے چناب میں پانی کی آمد میں اضافہ. ہیڈ قادر آباد اور چنیوٹ پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. ہیڈ مرالہ اور خانکی میں پانی کی آمد میں کمی. چنیوٹ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ. 4,50,000 کیوسک ریکارڈ. ہیڈ قادر آباد پر پانی کی آمد 5,57,000 کیوسک تک پہنچ گئی. ہیڈ خانکی پر پانی کا بہاؤ 5,29,000 کیوسک سے بڑھ گیا. ہیڈ تریمو پر درمیانی درجے کا سیلاب. پانی کا بہاؤ 2,65,000 کیوسک ریکارڈ. ہیڈ مرالہ پر پانی کی آمد میں کمی. پانی کا بہاؤ 3,26,000 کیوسک ریکارڈ. دریائے راوی میں ہیڈ سدنائی پر پانی کے بہاؤ میں کمی آنا شروع ہو گئی. پانی کا بہاؤ 1,45,000 کیوسک ریکارڈ. ہیڈ سدنائی پر اب بھی غیر معمولی سیلابی صورتحال. جسر اور شادرہ پر درمیانے درجے کا سیلاب. جسر پر پانی کا بہاؤ 82,000 کیوسک ریکارڈ. شادرہ میں پانی کا بہاؤ 78,000 کیوسک ریکارڈ. بھارت سے چھوڑے پانی سے دریائے چناب میں شدید طغیانی. سیلابی ریلے نے کوٹ مومن کے علاقے رامدیانہ میں تباہی مچا دی. سرکاری اسکول سمیت کئی عمارتیں پانی میں ڈوب گئیں. شورکوٹ کے مقام پر بھی اونچے درجے کا سیلاب. جنگ اور ملتان روڈ کے قریبی علاقے زیر آب. فوج اور ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف. ملتان میں سیلابی ریلے کے باعث دریائی کٹاؤ. زمینیں دریا برد. دریائے چناب کا سیلابی پانی پنڈی بھٹیا کے متعدد علاقوں میں داخل. گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج اور تھانہ صدر بھی زیر آب. سیلابی پانی نے جوک ونز کی متعدد بستیاں اجاڑ دیں. چشتیاں میں سیلابی پانی نے پوری بستی کو لپیٹ میں لے لیا. مکینوں نے چھتوں پر چڑھ کر جان بچائی. ہیڈ اسلام پر پانی کی سطح پھر بلند. مزید کئی بستیاں زیر آب آ گئیں. وہاڑی میں 15 سے زائد سرکاری اسکول ریلوں کی نظر ہو چکے. دریائے ستلج کے سیلابی پانی نے ہر چیز تہس نہس کر دی. ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر سیلابی پانی سے 100 سے زائد بستیاں زیر آب. پورے گاؤں پانی میں ڈوب گئے. دریائے ستلج میں اٹاری کے مقام پر گھر فصلیں اور مویشی پانی میں بہہ گئے. بہاول نگر میں ماڑی میاں صاحب کے قریب بند ٹوٹنے سے پانی آبادی اور فصلوں میں داخل. عارف والا میں دریائے ستلج کے ریلوں سے بڑی تباہی. اب تک 60 سے زائد گاؤں ڈوب چکے. درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع. 25,000 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ. منچن آباد میں دریائے ستلج میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے بستی احمد یار چھینا سمیت درجنوں دیہات پانی میں ڈوب گئے. رابطہ سڑکوں کو نقصان. پاک وطن میں دریائے ستلج کا سیلابی پانی علاقہ کمیریاں میں داخل. فصلیں تباہ. کیروڑ پکا میں کئی بستیاں زیر آب. زمینی رابطے منقطع. فصلیں تباہ ہو گئی. مکین نقل مکانی پر مجبور. احمد پور شرکیہ میں سیلابی پانی مزید کئی دیہات میں داخل. تربیلا ڈیم میں پانی کی گنجائش ختم. سپل ویز کھول دیے گئے. ڈیم سے 2.5 لاکھ کیوسک پانی کا اخراج کیا جائے گا. گجرات میں 506 ملی میٹر بارش نے شہر کے بیشتر حصے کو ڈبو دیا. اربن فلڈنگ سے 6 برساتی نالے بکھر گئے. سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں. بارشی پانی گھروں اور دکانوں میں داخل. قیمتی سامان تباہ. کچہری چوک گوندل چوک اور اسٹیڈیم میں پانی ہی پانی. شہر کے مختلف علاقوں میں 4 فٹ پانی جمع. تباہ کن صورتحال پر تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے. گجرات جیل میں پانی داخل. قیدیوں کو گجرانوالا اور لاہور کی جیلوں میں منتقل کر دیا گیا. مسلم بازار کے تاجر اپنی مدد آپ کے تحت قیمتی سامان محفوظ مقامات پر منتقل کرنے لگے. پنجاب میں 5 ستمبر تک شدید بارشوں کی پیش گوئی. سیلابی صورتحال میں شدت کا امکان. اگلا بڑا چیلنج ہیڈ محمد والا میں ہے. 5 ستمبر کو راوی ستلج اور چناب کا پانی ہیڈ پنجنت پر پہنچے گا. پہلے سے متاثرہ اضلاع سیلاب سے دوبارہ متاثر ہوں گے. چناب میں 5,75,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے. مختلف مقامات پر بند توڑ کر سیلابی ریلے کا بہاؤ کم کیا گیا. گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3 لاکھ کیوسک سے زائد ہے. ہیڈ تریمو میں بھی پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوگا. ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کی میڈیا سے گفتگو. کہا ریلیف کیمپوں میں 25 سے 30 ہزار متاثرین موجود ہیں. پنجاب میں سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 46 ہو گئی ہے. وزیراعظم کا بیجنگ سے چیئرمین NDMA کو ٹیلی فون. سیلابی صورتحال اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ لی. وزیراعظم کی ریسکیو اور امدادی کارروائیوں کی تیاری قبل از وقت مکمل کرنے کی ہدایت. NDMA صوبائی حکومتوں سے مکمل تعاون کرے. حفاظتی اقدامات اور امدادی کارروائیوں کو مزید تیز کیا جائے. وزیراعظم کی ہدایت.
सनअती ताउन पाक चीन इक़्तिसादी ताउन का बुनियादी सुतून करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के आला कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। चीन और पाकिस्तान के दरमियान B2B सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर बातचीत। टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सनअत, कानकनी पर तवज्जो मरकूज़। मादनियात, डिजिटल, राब्ते, ई कॉमर्स और खलाई टेक्नोलॉजीज़ के शोबों में ताउन पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी इस्तेहकाम के लिए जामी हुकूमती इस्लाहाती इक़दामात का तज़किरा। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ज़रिए मुआशी तरक्की के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी अदारों को ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स में सनअतें मुंतकिल करने की दावत। शहबाज शरीफ का चीन के शहर बीजिंग में आंजन हस्पताल का दौरा। रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी का मुआयना। शहबाज शरीफ की बेहतरीन खदमात की फराहमी पर अस्पताल इंतज़ामिया की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में ज़ेरे तामीर जनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दीगर अस्पतालों में आंजन हस्पताल की तर्ज पर सादा, मजबूत और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान में ज़ेरे तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाए। फैमिली के लोग कितने ने खाना पीना मिलता पे दर्द क्यों है? दर्द हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। हुकाम की रेस्क्यू और अमदादी सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग। मरीम नवाज का अमदादी और रिलीफ सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार। मरीम नवाज का हेड मोहम्मद वाला ब्रीच पॉइंट का दौरा। मुल्तान शहर को बचाने पर अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आला को खराज तहसीन। मरीम नवाज ने सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला की मुल्तान में रिलीफ कैंप आमद, इंतजाम देखे। पीने के साफ पानी और बच्चों के लिए दूध के इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर आला सैलाब मुतासरा बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गई। सैलाब मुतासरा ख़वातीन से मिसाल दरियाफ्त की। मरीम नवाज ने ख़वातीन को मलबूसात और दीगर तोहफ़े पेश किए। बच्चों को फ्रूट से भरी ट्रे पेश की। बच्चों की मरीम नवाज के साथ खुशगपियाँ, वालिदैन भी खुश। मरीम नवाज ने ख़वातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब की मेडिकल कैंप भी आमद, मरीजों की अयादत की। वज़ीर आला का अपने दौरे के दौरान मुल्तान में दुकानें बंद कराने पर इजहार बरहमी। फौरी रिपोर्ट मांग ली। कहा, मेरे दौरे में किसी को तकलीफ हो मुझे गवारा नहीं। मरीम नवाज की कासिम बिला लंगड़ियाल रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात। आटा सस्ता मिलने पर कैंप में मुकीम शख्स का मरीम नवाज को खराज तहसीन। पहले सस्ता आटा लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, अब आसानी से मिल जाता है। अब खाने पीने की अशिया सस्ती मिलती हैं। शहरी की गुफ्तगू, मेरी कोशिश होती है आटे की कीमत ना बढ़े। मरीम नवाज का जवाब। लेने के लिए जाते थे ना, लेनों में लगना पड़ता था हमको। 2200 2300 का 10 किलो मिलता था, 15 किलो का। अब शुक्र है खाने पीने की चीजें जो है ना हमें जायज रेट पे मिल रही है। मेरी कोशिश यही होती है कि आटे की कीमत ना बढ़े। अल्लाह आपको सलामत रखे। दुनिया न्यूज़। मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्तान कासिम बेला में कायम खैमा बस्ती में पड़े बेयारो मददगार मुतासरीन को सहूलियात के फुकदान का मामला उठाया। बताया, खैमा बस्ती बिजली से अब तक महरूम है। मुतासरीन को ग़ज़ा की क़िल्लत का भी सामना है। ख़वातीन, बुजुर्ग और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़वातीन वॉशरूम की सहूलत दस्तियाब ना होने के बायस अज़ियत से दो चार हैं। खैमे इतने छोटे हैं कि इसमें दूसरी चारपाई नहीं आ सकती। सैलाब मुतासरीन बड़ी तादाद में खैमा बस्ती के अलावा सड़कों और दीगर मकामात पर खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। सहूलियात के फुकदान के बायस बहुत से मुतासरीन खैमा बस्ती छोड़ के जा चुके। दुनिया न्यूज़ ने मुतासरीन की मुश्किलात दिखाई तो ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आई। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम अपनी टीम के हमरा खैमा बस्ती पहुंचे, जहां मुतासरीन को हर तरह की सहूलियात फ्राहम करने की यकीन दहानी कराई। वहीं वसाइल कम और मसाइल ज़्यादा होने का रोना भी रो दिया। कहा, मुतासरीन को तमाम सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। कि जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे सहूलियात में इजाफा करना वो हम करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी। बस्ती लंगड़ियाल के अंदर रोड के ऊपर मेल के वाशरूम मौजूद है और बैक साइड पे फीमेल के कैंप्स मौजूद है। हमारी टीम पूरी तरह तैयार है और ये हमारी जिम्मेदारी है। हम कोई एहसान नहीं किसी पे कर रहे, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंशाल्लाह हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। सूबों ने मुल्क बनाया, मुल्क ने सूबे नहीं बनाए। इंडिया भी इसी तरह था, वहाँ भी सूबों ने ही मुल्क बनाया था। तो वो तो रोज़ हर 5 साल के बाद आप देखें 1-2 नए सूबे उनके बन के सामने आ जाते हैं। अगर आप छोटे सूबे बनाएंगे उनका बजट कम हो जाएगा, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, उनकी ब्यूरोक्रेसी भी कम हो जाएगी।
कम से कम इतनी लेविश नहीं रहेगी जितनी लेविश आजकल है। तो जो हमने रिसर्च की है उसमें एक्चुअली अगर आप हर डिवीजन को प्रोविंस बना दें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बढ़ेगा नहीं, बिकॉज आज सबसे बड़ा एक्सपेंस जो हमारे सूबे का है या तमाम सूबों का है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। हर डिवीजन को सूबा बनाने से इंतजामी अखराजात कम होंगे, मुआशी तरक्की भी होगी। दुनिया में मुल्कों का साइज जिस तरह बढ़ता गया उन्होंने खुद को यूनिट्स में तकसीम किया। भारत में हर 5 साल के बाद एक नया सूबा बनकर सामने आ जाता है। हमारे पास शुरू में भी 4 सूबे थे और अब भी इतने ही हैं। चाइना के 6 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे, अब 34 हैं। इंडोनेशिया के 38 सूबे हैं, कनाडा के 4 सूबे थे, आज 10 हो चुके। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब, कहा इतने बड़े सिस्टम से लीडर निकल कर आना मुश्किल काम लगता है। हम बद इंतजामी की वजह से इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जो काबिल फख्र नहीं। आज इतनी बड़ी आबादी को पालना हुकूमत के लिए मुश्किल है। सूबे बनेंगे तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की सरबराही में फुल कोर्ट अजलास प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और इस्टेब्लिशमेंट रूल्स कसरत राय से मंजूर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और इस्टेब्लिशमेंट रूल्स की 6 जजेस ने हिमायत की, 5 ने मुखालफत की। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन ने हक में वोट दिया। जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन ने भी हिमायत की। जस्टिस मोहसिन अख्तर, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार के रूल्स की मुखालफत, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत ने भी मुखालफत में वोट दिया। एक जज की फुल कोर्ट मीटिंग मुअक्कद करने की इस्तदा भी मुस्तरद। हमास ने जामे ग़ज़ा मुआहदे पर आमादगी जाहिर कर दी। इजरायली कैदियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए। हमास का आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से भी ग़ज़ा में जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। हमास का सालिसों के पेश करदा जंग बंदी की तजावीज़ कबूल करने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तमाम यरगमालियों को रिहा करने की धमकी के बाद सामने आया। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमास फौरी तौर पर तमाम इजरायली यरगमालियों को रिहा करे तो जंग बंदी हो सकती है। यरगमालियों की रिहाई के बाद गजा में सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। उधर हमास की आमादगी जाहिर करने के बावजूद इजरायली वज़ीर आज़म की हट धर्मी बरकरार, हमास के सीज़ फायर पेशकश को मुस्तरद कर दिया। कहा गजा में फौरी जंग बंदी इजरायल की शराइत पर होगी, हमास को गैर मुसल्लह भी होना होगा। इजरायल ने गजा में जुल्म की हर हद पार कर दी। ताज़ा हमलों में 100 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायल के पनाह गज़ीन कैंपों पर बमबारी, आग भड़क उठी, बड़े जानी नुकसान का खदशा। कैंपों में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 63,746 हो गई। 1,61,245 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। हमास जंगजुओं का शुमाली गजा में इजरायली फ़ौजी काफ़िले पर हमला, कई गाड़ियाँ और टैंक तबाह, मुतादिद इजरायली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। इजरायल ने गजा में नन्हे फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली बर्बरियत से 21,000 फ़लस्तीनी बच्चे माजूर और 40,500 बच्चे ज़ख्मी हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूस पर अदम एतमाद, सदर प्यूटन पर सख्त तनकीद। कहा प्यूटन बहुत मुहज़्ज़ब नजर आते हैं लेकिन वो खाली बातें करते हैं। मैं प्यूटन पर भरोसा नहीं कर रहा। रूस अब भी यूक्रेन जंग खत्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। आइंदा चंद दिनों में प्यूटन से राब्ता करूंगा। अगर अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो रूस पर मुमकिन पाबंदियां आयद होंगी। अगर हम प्यूटन के फैसले से नाखुश हुए तो रद्द अमल देखने को मिलेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेनी सदर से मिलने के लिए तैयार। सदर पुतिन ने कहा ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार हूं। अगर ज़ेलेंस्की मॉस्को आना चाहें तो मुलाकात मुमकिन है। यूक्रेन की नेटो में शमूलियत के मुखालिफ हैं। यूक्रेन के इलाकों पर कब्जे के लिए नहीं बल्कि वहाँ के अवाम की हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश हैं। चीन का दौरा मुस्बत और नतीजा खेज़ रहा। चीन के साथ किए गए मुआहदे दोनों ममालिक के मुफाद में हैं। नाइजीरिया के शुमाली वस्ती इलाके में कश्ती डूबने से 63 अफराद हलाक। हादसा दरियाए मालाले में पेश आया। कश्ती में 90 अफराद सवार थे। मुतादिद लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कश्ती को हादसा ओवरलोड होने की वजह से पेश आया।